तो कहाँ थे हम लोग? यही 118 में। 118 में या 17 में? 17 हो गया था। अच्छा अच्छा। 118 subsection 1. A repayment plan shall be deemed to have come to an end prematurely if it has not been fully implemented in respect of all persons bound by it within the period as mentioned in the repayment plan. 2. Where a repayment plan comes to an end prematurely under this section, the resolution professional shall submit a report to the adjudicating authority, which shall state the receipts and payments made in pursuance of the repayment plan. B. The reasons for premature end of the repayment plan, and C. The detail of creditors whose claims have not been fully satisfied. Subsection 3. The adjudicating authority shall pass an order on the basis of the report submitted under subsection 2 by the resolution professional that repayment plan has not been completely implemented. Subsection 4. The debtor or the creditor whose claims under repayment plan have not been fully satisfied shall be entitled to apply for a bankruptcy under bankruptcy on order under chapter 4. 5. The adjudicating authority shall forward to the person bound by the repayment plan under section 115 a copy of a report submitted by the resolution professional to the adjudicating authority under subsection 2 and 3. Order passed by adjudicating authority under subsection 3. 6. The adjudicating authority shall forward a copy of the order passed under subsection 4 to the board for the purpose of recording entries in the register referred to in section 196. Discharge order. On the basis of the repayment plan, the resolution professional shall apply to the adjudicating authority for a discharge order in relation to the debts mentioned in the repayment plan, and the adjudicating authority may pass such discharge order. 2. The repayment plan may provide for A. Easy discharge or B. Discharge on Early discharge. complete early discharge. B. Discharge on complete implementation of the repayment plan. 3. Discharge order shall be forwarded to the board for the purpose of recording entries in the register referred to in section 196. 4. The discharge order under subsection 3 shall not discharge any other person from any liability in respect of his debt. 120. Standard of conduct. The resolution professional shall perform his functions and duties in compliance with the code of conduct provided under section 208. So we have completed one segment. Okay, we have completed one segment of IRP part 3 chapter 3. Okay, this is P3
P3C3 बोलते हैं इसे शॉर्ट में, 94 120। ओके। P3C3 बहुत सारे सेक्शन हैं, तो इसे हमें सेगमेंट करके अलग अलग क्लस्टर करके याद करने पड़ते हैं, ध्यान में रखना हम्म। पड़ता है। 94 120, है ना? हाँ हाँ IRP ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। सो नाउ वी विल कंक्लूड, है ना? कंक्लूड हमने कहाँ तक कर लिया था, कहाँ तक कर लिया था, वहां से कंक्लूड, कंक्लूड कहाँ तक किया था हमने? हमने पढ़ा यहाँ से, हाँ कंक्लूड हाँ। कहाँ तक किया था? 113 तक कर लिया था। 113 तक हमने कंक्लूड कर लिया था। हाँ हाँ। So we now conclude order of execution repayment plan, ये भी ऑल्सो हमने कंक्लूड कर दिया था मे बी। हम्म। रिकन्वेन मीटिंग होगा, है ना, ऐसा बात हुआ हाँ था। हाँ हाँ हाँ। इफेक्ट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन रिपेमेंट प्लान, क्या इफेक्ट आएगा 115 में? 115 में हाँ क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट होगा इसका? अप्रूव रिपेमेंट हम्म अंडर सेक्शन टेक इफेक्ट एज प्रपोज्ड डेटर, एज इफ द प्रपोज्ड बाय डेटर इन मीटिंग, हम्म क्या इफेक्ट आएगा? बी बाइंडिंग ऑन द क्रेडिटर, है ना, ऑन हम्म रिपेमेंट प्लान एंड द हम्म डेटर, ठीक है ना? हम्म, हाँ ये माना जाएगा कि ये डेटर का प्रपोजल है, हाँ। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि क्रेडिटर का प्रपोजल है, डेटर ने ही ये एक्सेप्ट किया है, ये माना हम्म, जाएगा। हाँ होता है ना कि नहीं, कि फिर हाँ डेटर बाद में यह नहीं कहते कि भाई नहीं, ये तो हमने क्रेडिटर ने कहा था, नहीं, ये क्रेडिटर ने कहा था हाँ। ऐसा हमने मान लिया, नहीं। टेक इफेक्ट हम्म एड, भैया ये आपने कहा है, जो भी बात हम्म हुआ क्रेडिटर डेबिटर का, ये आपका बात हम्म है, उसमें हम्म प्रपोज होगा, इफेक्ट क्या होगा भाई? वो अपना ओथ ले लेगा कि जो भी प्लान है ये हमने अपनी इच्छा से किया है, स्वेच्छा से किया है, तभी नहीं होगा, हम्म, और ये मेरे हाँ हाँ। कंसेंट से है, ठीक है ना? हम्म, ऐसा करके वर्डिंग हाँ। इसमें लिखी रहेगी। बी बाइंडिंग ऑन द हम्म, क्रेडिटर एज मेंशन इन रिपेमेंट प्लान डेटर एंड क्रेडिटर, और दोनों पर बाइंडिंग हो जाएगा, है ना? हाँ। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी महीन बात है। हालांकि हम्म ऐसे पेन में करेंगे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ हम्म डॉक्यूमेंटेशन वैसा बनेगा, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि एज हम्म, इफ प्रपोज्ड बाय डेटर, उसकी उसकी जो लैंग्वेज होगी ना, उसकी हाँ लैंग्वेज हाँ। वैसी लिखी जाएगी वहां, हम्म ठीक है, रीपेमेंट प्लान में, ठीक है। हम्म, वेयर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिजेक्ट द रीपेमेंट प्लान इन द सेक्शन, द डेटर एंड क्रेडिटर विल बी एंटाइटल्ड एप्लीकेशन बैंकरप्सी। भाई अगर वो प्लान ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया, तो अभी क्या रास्ता बनता है दूसरा? भैया पेमेंट तो लेना है, हाँ, क्रेडिटर नो को, बैंकरप्सी। हाँ क्रेडिटर को पेमेंट लेना है, डेटर को पेमेंट देना है, लेकिन दोनों के बीच में हाँ मामला नहीं सुलझा, मामला सुलझा भी तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना? हाँ हाँ तो हाँ हाँ। यहाँ 115(4) में, 115(2) में जो रिजेक्शन की, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है हमें माइंड में, हो सकता है कि बैंक्रप्सी का को जा के सिचुएशन में कब पहुंचेंगे। बैंक्रप्सी के सिचुएशन में एक तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया 115(2) में, ठीक है ना? तो हाँ क्रेडिटर और डेटर दोनों ही इंटाइटल हो जाएगा कि भैया फाइल एप्लीकेशन करो बैंक्रप्सी के लिए, चैप्टर हाँ 4 में, P3C4 में, ठीक है। हाँ A copy हाँ of order passed by adjudicating authority under section 2 shall be provided to the board, IBBI को दिया जाएगा भाई, है ना? IBBI को रिकॉर्ड पर्पस से दिया जाएगा, 3 कॉपी बनती है इसकी, 3 या 4 कॉपी बनती है ऑर्डर की, हाँ। सबका 3 3 4 4 कॉपी बनता है, मोटी मोटी कॉपी एकदम, है। हम्म फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एनी एंट्री ऑफ द रजिस्टर्ड रेफर टू इन सेक्शन 196, दीज आर वेरी peculiar सेक्शन एंड वेरी, ये जो पढ़ रहे हैं ना, वेरी अलग, बहुत अलग है चीजें, हम्म हाँ, वेरी हाई लेवल सब बात। हम्म इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ रिपेमेंट प्लान, इम्प्लीमेंटेशन एंड हम्म सुपरविजन ऑफ इम्प्लीमेंट प्लान, ये सेक्शन 16 किस बारे में बात बोल रहा है भाई? 116 रिजल्ट अपॉइंटेड सेक्शन सेल सुपरवाइज एंड इम्प्लीमेंट, ये एक सुपरवाइजर ही तो है। हाँ अगर हाँ बोर्ड के लिए बोले तो वो एक सुपरवाइजर नियुक्त कर दिया, भाई हाँ। हमारे बिहाफ में काम करो, जाकर के इस हम्म, प्रॉब्लम को सुलटारा करो, है ना? सुपरवाइजर बोल हाँ लो, हाँ। एजेंट बोल लो, जो भी बोल लो, एजेंट हम्म, थोड़ा वर्डिंग प्रोफेशनल के लिए नहीं सूट करता है, सुपरवाइजर हाँ सूट कर जाएगा।
इसमें हम्म प्रोफेशनल में अप्लाई द फॉर डायरेक्शन नेसेसरी। अच्छा, अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम आया कि भाई हम्म ये नहीं खाली कर रहा है मकान, तो बीच बीच में वो हम्म डायरेक्शन के लिए जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के हाँ पास में। हाँ, कोई भी मैटर एराइजिंग हो रहा है, कोई हम्म भी कोई धरना दे दिया, एम्प्लॉय धरना दे हम्म दिया, कुछ फैक्ट्री में गए उसमें कुछ करना है, ठीक है ना, हाँ 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 एम्प्लॉय कुछ नहीं देगा, तो पुलिस हाँ लेके जाएगा। पुलिस किसको हम्म लेके जाएगा, तो किसको बोलेगा, किसे बोलेगा, वो हाँ पुलिस के पास जाएगा, डायरेक्ट थाना में जाएगा नहीं, वो हाँ जाएगा, हाँ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जाएगा, थाना में नहीं जाएगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, हम्म वहां से ऑर्डर लेके आएगा, वो थाना को दे हम्म देगा, बात खत्म। प्रोसीजर है ना हाँ हाँ प्रोसीजर। सबका। वो अपनी राइट से थोड़ा सा भी हम्म हिल जाएगा ना, कितनी राइट दी हम्म गई है, तो उसके ऊपर में कितनी हाँ बड़ी चार्ज आ जाएगा, कुछ उसका ये नहीं है ना, उसकी नौकरी चली जाए, खतरे में हो सकती है। भैया आपने ये ऐसा किया कैसे, आपने रूल्स हाँ रेगुलेशन पढ़ा नहीं था, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं पढ़ा क्या आपने, हम्म तो कैसे आ गए, कैसे आप बन गए। हम्म कोई होता ना जोश जोश में कर दिया, ऐसा काम नहीं कर सकता है। हाँ चलो, यही सही कंप्लीशन है, ये तो तुमने पढ़ ही लिया, मैं इसे हाँ कंक्लूड कर देता हूँ। कंप्लीशन ऑफ रिपेमेंट प्लान 117 में क्या है, रिपेमेंट प्लान को कंप्लीट कर देते हैं। हम्म रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सेल विद इन 40 डे फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिपेमेंट फॉरवर्ड। देखो, कंप्लीशन ऑफ रिपेमेंट प्लान में तो थोड़ा टाइम लग सकता है ना। हाँ, हम्म उसके 14 डे में, उसके 14 डे में, एक मिनट जरा सा बात। हाँ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सेल विद इन 14 डेज, ओके, resolution proposal हम्म shall within 14 days of the completion of repayment plan forward the person who are bound by the repayment plan under 115 of the adjudicating authority following documents, namely a notice that the repayment plan has been fully implemented। अच्छा, हम लोग कहाँ थे अभी, नोटिस अपना फोन आ गया था, यहीं पे थे ये इधर में वन थे। वन सब। कंप्लीशन ऑफ रिपेमेंट प्लान, the resolution proposal shall within 14 days of completion of repayment plan forward the person who are bound by the repayment plan under section 115 and adjudicating authority the following document, namely a notice that a repayment plan has been fully implemented। हाँ, नोटिस देगा फॉरवर्ड टू द पर्सन। हाँ, यहाँ क्या बात हो रही है, नोटिस फॉरवर्ड करने की बात हो रही है ना, कब बात हो रही है, 14 दिन के अंदर में, ठीक है ना, और क्या हाँ फॉरवर्ड करने की बात आ रही है, रिपेमेंट प्लान फॉरवर्ड करने की आ रही है। हाँ, हम्म हाँ फॉरवर्ड टू द पर्सन हम्म द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अच्छा, रिपेमेंट प्लान नहीं, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है, ये हम्म सारे डॉक्यूमेंट जो है फॉरवर्ड करने की बात हो रही है रिपेमेंट प्लान हो जाने के बाद टू द पर्सन, हम्म ये लोग को, ये लोग को टू द पर्सन बाउंड बाय द रिपेमेंट प्लान एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना बाउंड में, उसके अंदर में क्रेडिटर, हाँ हाँ क्रेडिटर, रिलेटिव, ये फलना ढिकना, प्लस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है कि नोटिस हम्म प्लान भाई ये हो गया, काम ओके है, नोटिस हम्म रिपेमेंट प्लान फुल्ली इम्प्लीमेंटेड हो गया, डन, वर्क डन। A copy हाँ of report by resolution purpose summoning the all receipt and payment. Copy of report by resolution purpose summarizing all receipt and payment made in pursuance of repayment plan and the extent of implementation such plan is compared with the repayment plan approved in the meeting of the creditor। देखो क्या होता है ना, कि ऐसा बात तो नहीं है कि जो एकदम रिपेमेंट प्लान बना, ठीक है ना, एकदम डिटो हम्म मैच करेगा, नहीं बनेगा ना, हाँ एक आध नहीं परसेंट तो ऊपर नीचे जरूर होगा, ये हाँ पक्का ही बात है। तो जो रिपेमेंट हम्म प्लान बना था, जो रिपेमेंट प्लान बना हाँ था, उससे क्या डिफरेंस हुआ, वो उसका हाँ रिसिप्ट पेमेंट मिलाएगा, बजटेड रिसिप्ट पेमेंट और एक्चुअल रिसिप्ट पेमेंट, कंपेयर्ड प्लान, हम्म प्लान वो भी कॉपी भेज देगा कि ऐसा हुआ था पहले, ऐसा हम लोग सोचे थे, लेकिन इतना ये आ गया, एक्चुअल हाँ रिजल्ट यही है। हम्म
अच्छा, ये जो पीरियड है उसको इसके लिए 7 दिन से और एक्सटेंड कर सकता है, 14 7 21 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं करना है, यही बात बोला। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है ना? हाँ क्लियर। ठीक है, रिपेमेंट प्लान कमिंग टू एन एंड मैच्योरिटी, यहाँ देखो हो गई कहानी, यहाँ हो गई कहानी। हम्म, रिपेमेंट प्लान कमिंग टू एंड prematurely. The repayment plan shall be deemed to have been prematurely. कहानी बीच में ही खत्म, कहानी हाँ it has been not been fully implemented, not been fully implemented है। भाई सब कुछ हो गया, सब मान लिया, ये मान लेंगे, कर लेंगे, दे लेंगे, ठीक है ना, पता चला कि अगर पूरा। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ ठीक हाँ है ना, आधा में ही रुक करके थोड़ा बहुत काम हुआ। अब जहाँ 100% काम होना चाहिए वहाँ 50 में ही आके अटक गया। ठीक है ना, हम्म, 50 में आकर हाँ मेंशन पेमेंट प्लान in respect to all person bound by in whether people come to prematurely the result person shall submit the report अभी shall state। अभी जहां तक जो कहानी हुआ, हाँ। प्रीमेच्योर प्रीमेच्योर का क्या क्राइटेरिया हो सकता है, कितना परसेंट हो सकता है, ठीक है ना। रीजन ऑफ हाँ प्रीमेच्योर एंड ऑफ द डिटेल ऑफ द क्रेडिटर हुज क्लेम हैज नॉट बीन फुल्ली सेटिस्फाइड, बहुत सारा हाँ। क्रेडिटर का सिर्फ क्लेम ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ठीक है ना। हम्म, हाँ The adjudicating authority shall pass an order on the basis submitted under section 2. Resolution plan shall repayment plan has been not been fully completed. जहाँ 50 का 100 में ही, 100 का 50 में ही अटक गया, तब तो क्या हाँ। करना पड़ेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, भैया वो इम्प्लीमेंट नहीं रिपोर्ट। हुआ, हाँ नहीं हुआ, ठीक है ना। हम्म, जहाँ 100 हाँ का 90 में हुआ, तो वहाँ एक हाँ इंसान लॉजिकली क्या बोलेगा, नहीं ठीक है हो गया, है ना। हाँ 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 द ये कुछ कुछ प्रैक्टिकल बात सब है। अब इसका हाँ। क्राइटेरिया क्या हो सकता है, क्या ऑर्डर आता है, क्या पास होगा, 10 20 ऑर्डर देखेंगे जो रिजोल्यूशन पास हम्म, हुआ है ना, तब हमें पता हाँ। चलेगा ऑर्डर पढ़ करके। हम्म, डेटर एंड क्रेडिटर क्लेम रिपेमेंट तो अप्लाई बैंक्रप्सी, अब दोनों को बैंक्रप्सी अप्लाई कर दो भाई, है ना, डेटर क्रेडिटर। हाँ। The adjudicating authority shall forward the person to bound the repayment balance copy of the report submitted to the portal shall forward। अब ये हम्म, फॉरवर्ड किसे करेगा कॉपी, किससे कॉपी करेगा, जो बाउंड है, ठीक है ना, हाँ। नहीं होने का। रिपोर्ट सबमिटेड बाय रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ए कॉपी ऑफ टू द, द। हाँ, वही जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने तो एक भेजा ना कि भैया ये सर ये तो नहीं हो पाया काम, ठीक है ना। हाँ। हाँ, तो क्या करेगा, वही कॉपी जो है सबको फॉरवर्ड कर देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सबको, हम्म, हाँ अंडर 2 ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सक्सेशन 3। 3 के अंदर में क्या बोला कि भैया नॉट कंप्लीटेड हुआ, कंप्लीटेड हाँ नहीं है, हाँ। ये ऑर्डर भी पास कर दिया, अपना भी डॉक्यूमेंट लगा दिया उसमें, हम्म, सिर्फ उतना ही डॉक्यूमेंट पास करना रहता, भेजना रहता, तब तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल तो अपने साइड से भेज ही दिया था सबको। नहीं हाँ नहीं हाँ। नहीं नहीं, एक मिनट, कमिंग टू एंड वेयर सबमिट, अच्छा अच्छा, जब रिजोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन प्लान जब प्री मेच्योरली एंड हो गया ना, तो वो सबको नहीं भेजेगा, वो अपने बॉस को भेज दिया। उसके बॉस हाँ कौन हुए, उसका बॉस नहीं, ये जो एडजुडिक। एडजुडिकेटिंग उसके बॉस नहीं हुए, वो अपने अथॉरिटी को भेज दिया हाँ। कि ये ऐसा सब बात है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी अपना डॉक्यूमेंट उसकी कॉपी को लगा करके प्लस जो अपना ऑर्डर पास करेगा उसके साथ में, ये पास नहीं हम्म हुआ भाई, ठीक है ना। हम्म, The adjudicating authority shall forward a copy of order passed under subsection 4 of the board to the board। 4 में क्या था, 4 में बैंक्रप्सी वाला, एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का कॉपी लगाया, एक अपना कॉपी हम्म लगाया, और बैंक्रप्सी का भी ऑर्डर पास कर दिया उसमें, एक एक अटैचमेंट और रख दिया कि भैया अब इसका हम्म बैंक्रप्सी कराने वाले हैं, ठीक है। हम्म, The adjudicating authority shall forward a copy of the pass and अभी हो गया डिस्चार्ज, ये तो हो गया था निगेटिव वाला बात। हाँ 118 है ना, 118 हाँ। जहाँ ये काम नेगेटिव। नहीं,
काम नहीं हुआ, हाँ। नेगेटिव वाला फैक्टर। अभी ये पॉजिटिव फैक्टर वाला में बात, 119 हम्म, वाला में। यहाँ हाँ। काम हो गया अच्छे से, लगता है शायद काम हाँ, हो गया। डिस्चार्ज ऑर्डर। हाँ। डिस्चार्ज ऑर्डर। हाँ। On the basis of repayment pledges, the shall apply the declaration discharge order in relation to the date mentioned in the repayment plan. The shall pass the discharge order, repayment plan provide for early discharge, कि भैया जल्दी हो गया काम, हम्म। ठीक है ना। डिस्चार्ज, कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिपेमेंट प्लान, कंप्लीशन पेमेंट हो गया भाई, ठीक है ना। डिस्चार्ज ऑर्डर सेल हम्म। फॉरवर्डेड टू द बोर्ड। अच्छा, ये बोर्ड, बोर्ड को भी फॉरवर्ड किया जाएगा। बोर्ड को फॉरवर्ड कौन करेगा? यहाँ रेजुलेशन प्रोफेशनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेजा। हाँ। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को भेजता है। देखो, हम्म। बहुत कहानी है इसमें। किसको हम्म। किसके डॉक्यूमेंट भेजना है, हमें कहाँ कहाँ हमें डॉक्यूमेंट लगाना है, वो तो पता रहना हाँ। चाहिए ना। हाँ। हमें हाँ। भैया कोर्ट में जमा करना है, ये कोर्ट है, एनसीएलटी। हाँ। 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 एनसीएलटी या डीआरटी। हम्म। हाँ। और डीआरटी भेजेगा बोर्ड को। हाँ। हाँ, वो लोग भाई भाई है, अपने भाई को भी भेज हम्म। दिया। हम्म। प्रोफेशनल हो गया उनका, चाइल्ड हो गया, सब ऑर्डिनेट हो गया। हाँ। डिस्चार्ज ऑर्डर अंडर सेक्शन शैल नॉट डिस्चार्ज एनी पर्सन लायबिलिटी रिस्पेक्ट ऑफ हिज डेड। बाकी का ऑर्डर डिस्चार्ज नहीं करेगा। और 220 स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। खंड। भैया इसमें एथिक्स रूल प्रोफेशनल करना पड़ेगा, ये सेक्शन, ये बात जो है सेक्शन 90 भी 3 में भी लिखा हुआ है, 120 में भी हम्म। लिखी हुई है। हम्म। और एक दो जगह और भी लिखी हुई है स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट की बात, ठीक है। जहां हम्म। जहां काम करेगा प्रोफेशनल, वहां हाँ, वहां स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट की बात लिखी करेगा। हुई है, हम्म। ठीक है ना। तो ये हम्म। जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। हाँ। तो अभी इसमें हम चैप्टर 4 में चलते हैं। हाँ। चैप्टर 4 में चलते हैं, अच्छा लग रहा है तो, हाँ। हाँ। कुछ नयापन लग रहा है तो। हाँ। हाँ। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स है ये सब। हम्म। हम्म। चलो ये। Bankruptcy order for individuals and partnership firms. हम्म। Section 121. हम्म। Application for bankruptcy. हम्म। Subsection 1. An application for bankruptcy of a debtor may be made by a creditor individually or jointly with other creditors by a debtor to the और भाई। adjudicating authority. हम्म। Adjudicating authority in the following circumstances, namely: A. Where an order has been passed by an adjudicating authority under subsection 4 of section 100. B. Where an order has been passed by an adjudicating authority under subsection 2 of section 115. एक मिनट देखो, यहाँ बहुत सारा हम लोग पढ़े थे, रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, अलग अलग इसमें, ठीक है ना। हाँ। 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 104 में, 104 में एडमिशन जब हमने एप्लीकेशन किया ना, उसी समय एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट। तो हाँ। डायरेक्ट हाँ। बैंक्रप्सी में ले आया था यहाँ पर, ठीक है ना। 104 में हाँ। आईआरपी का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। दूर ये तो, हाँ। ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, 10 रुपया जहाँ हम्म। मांग रहे हैं वहां बोलता है 1 रुपया देंगे। ये कोई आईआरपी हुआ? हाँ। बैंकरप्ट करो। हम्म। नाटक कर रहा है, हम्म। बैंकरप्ट करो इसको। हाँ। हम्म। हाँ। चलो। Where an order has been passed by an adjudicating authority under subsection 2 of section 115. 115 में, अभी एक जगह और था 115 दो में, 115 दो हम्म। में मीटिंग हो गया था, ठीक है ना। हाँ, सब कुछ हो रिपेमेंट, गया था, बाद में वो बाद में डिस्प्यूटेड। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ही रिजेक्ट कर दिया प्लान को। हाँ। और बेकार हाँ, प्लान है वो ये वाला। तो। हाँ, हम्म। ठीक है। अभी कि तीसरा where an। वाला, हाँ, दूसरे वाला कि सब कुछ हो गया, ऑर्डर फोर्डर सब पास हो गया, ठीक है, सब बाद कुछ में। पास हो गया, फिर भी काम नहीं हाँ। किया, ठीक है ना। हाँ, वो तीन वाला स्टेज सेक्शन। में, 3 वाला है सेक्शन। अभी एकदम हाँ। क्लियर कहानी है तो, कंक्लूड हो गया। हाँ, क्लियर। पहला वाला क्लियर है। स्टार्टिंग में 104 के 100 सबसेक्शन 4 में स्टार्टिंग में ये कर दो, काम खत्म, ठीक है ना, ये काम का नहीं है।
टाइम खोटी करेगा ये सब, हाँ, टाइम खोटी करेगा। हाँ। ये सेकंड वाला में क्या करेगा, सेकंड वाला में बनाया, टाइम तो खोटी कर दिया आधी, आधी टाइम खोटी किया, करके ये बेकार प्लान बनाया, प्लान बनाया, बेकार हम्म। प्लान बनाया। थर्ड हाँ। वाले में प्लान बनाया, सब कुछ प्लान अच्छा बनाया, लेकिन काम ही नहीं किया प्लान पर। एक सौ हाँ। अठारह हाँ। तीन में। हम्म। हाँ, तीन कहानी हो गया। एक हाँ। सौ अठारह तीन, एक सौ चार, 115 2 और 118 3। ठीक है चलो। हाँ। Subsection 2. An हम्म, application for bankruptcy shall be filed within a period of 3 months of the date of the order passed by an adjudicating authority under the sections referred to in subsection 1. 3. Where the data एक of मिनट the एक मिनट, कब तक firm करना, द एप्लीकेशन ऑफ फाइलिंग बैंक से फाइल विद इन ए पीरियड ऑफ 3 3 मंथ months के अंदर। ऑफ द पास ऑफ द, अच्छा अच्छा, द एप्लीकेशन। अभी क्या है, देखो इसमें क्या है कि बैंक्रप्सी का जो एप्लीकेशन फिर से फाइल करना पड़ेगा इसमें, हाँ। मतलब कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कह दिया कि रिजेक्ट है, एक्सेप्ट है, ठीक है ना। अभी बैंक्रप्सी का ऑर्डर फाइल करना, ये हाथ में किसका है अल्टीमेटली, डेटर क्रेडिटर या उसके प्रोफेशनल के ऊपर में है ना। हाँ। हाँ। तो सब उधर में एक्सेप्ट हो गया, तो भी बैंक्रप्सी का ऑर्डर अगर फाइल करना है भैया, बैंक्रप्ट वाले भी काम करना है आपको हम्म। इसका, तो आप 3 मंथ में, जब से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, उसके तीन हम्म। महीने के अंदर में आप बैंक्रप्सी ऑर्डर पास कर दो, ठीक है ना, ये फाइल हम्म। कर दो, एप्लीकेशन कर दो बैंक्रप्सी का हम्म। फाइल। हम्म। हम्म। एप्लीकेशन फाइलिंग का समय दिया है 3 महीना। अभी यहाँ तीन हम्म। महीना के बाद अगर ऐसा सिचुएशन फाइल करना पड़े, तो क्या होगा, ये यहाँ नहीं लिखा हुआ है ना। हाँ। मगर अभी इतना ही जानते हैं कि 3 महीना तक की इसमें लाइबिलिटी फाइल करने हाँ। की, ठीक हम्म। है। अभी where the debtor is a firm, the application under subsection 1 may be filed by any of its partners. एनी ऑफ इट्स पार्टनर हाँ, कोई पार्टनर कर सकता है। के द्वारा हो सकता है। Section 120. Application by debtor. 22। Subsection 122. The application for bankruptcy by the debtor shall be accompanied by A. The records of insolvency resolution process undertaken under Chapter 3 of Part 3. B. The statement of affairs of the debtor in such form and manner as may be prescribed on the date of the application for bankruptcy, and C. A copy of the order passed by the adjudicating authority under Chapter 3 of Part 3 permitting the debtor to apply for bankruptcy. Subsection 2. The debtor may propose an insolvency professional as the bankruptcy trustee in application for bankruptcy. 3. The application referred to in subsection 1 shall be in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed. 4. An application for bankruptcy by the debtor shall not be withdrawn without the leave of the adjudicating authority. लीव मतलब परमिशन, Okay. हाँ। लीव मतलब परमिशन होता है, लीव, लीव मतलब सर, लीव हाँ, हो गया। देते हैं, लीव मतलब छुट्टी हो गया सर। लीव मतलब हाँ। छुट्टी हाँ। होती है हाँ। ना, लीव का मतलब हाँ। यहाँ लॉ की भाषा में परमिशन। परमिशन होता है। हाँ। ठीक है, तो अभी के लिए मीटिंग कर लेते हैं, फिर इसे कंक्लूड कर लेंगे हमने दूसरे सेशन।
Section 123. Application by creditor. Subsection 1. The application for bankruptcy by the creditor shall be accompanied by a. The records of insolvency resolution process undertaken under Chapter 3. B. A copy of the order passed by the adjudicating authority under Chapter 3 permitting the creditor to apply for bankruptcy. C. Details of the debtors owned by debtor to the creditor as on the date of the application for bankruptcy. D. Such other information as may be prescribed. Subsection 2. An application under subsection 1 made in respect of a debt which is secured shall be accompanied with a statement by the creditor having the right to enforce the security that he shall, in the event of a bankruptcy order being made, give up his security for the benefit of all the creditors of the bankrupt, or B. A statement by the creditor stating 1. That the application for bankruptcy is only in respect of unsecured part of the debt, and 2. An estimated value of the unsecured part of the debt. 3. If a secured creditor makes an application for bankruptcy and submits a statement under clause B of subsection 2, the secured and unsecured part of the debt shall be treated as separate debts. 4. The creditor may propose an insolvency professional as the bankruptcy trustee in the application for bankruptcy. 5. An application for bankruptcy shall be in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed. 7. An application for bankruptcy by the creditor shall not be withdrawn without the permission of the adjudicating authority. If Section 124, effect of application. Subsection 1. Where an application is filed under sections 122 or 123, an interim memorandum shall commence on the day. Interim moratorium shall commence on the date of the making of the application on all actions against the properties of the debtor in respect of his debts, and such moratorium shall cease to have effect on the bankruptcy commencement date and be during the interim moratorium period. 1. Any pending legal action or legal proceedings against any property of the debtor in respect of any of his debts shall be deemed to have been stayed. 2. The creditors of the debtor shall not be entitled to initiate any legal action or legal proceedings against any property of the debtor in respect of any of his debts. 2. Where the application has been made in relation to a firm, the interim moratorium under subsection 1 shall operate against all the partners of the firm
as on the date